ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ PWD ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੂਰੇ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ PWD ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਡੇਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ नहीं हो रहा। बाकी जानकारी लेने भरा साढ़े नाल जुड़ने। हाँ जी सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ पहुँचे हो। ये देखो आपके सामने है जो क्या हाल होया पड़ा है सड़कों का। यहाँ पे किसी अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी भी रोज निकलते होंगे, सब देखते हैं अभी यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी अभी एक्सीडेंट होया वहीं। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया? अभी अभी सामने हो रहा है, देखो रेड की गिरी है नीचे। अच्छा जी। हाँ सो नीचे गिरी एक्टिवा पे। देखो अभी अभी खबर आई है, अभी देखो भाई अभी अभी बता रहा है इस रोड पे ही इसी कारण एक्सीडेंट भी हो चुका है। देखो कितने बड़ा हादसा होया, ये खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी कटका नहीं डाल के कोई कुछ नहीं कर रहा है जी। यहाँ पे सब अंके मीच के बैठे हैं, कोई अधिकारी कुछ कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਬਚ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਚੜ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जनता को? बस देख लो जो आपके सामने सरकार अंक मीच के बैठी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो बड़े बड़े अधिकारी है, घनीश्याम दास अरोड़ा भी, और यहाँ पे शिक्षा मंत्री हमारे यहीं से रोज गंदगी करना पड़ना है, कोई ध्यान नहीं दे रहा जिस इस पीछे। देखो आपके सामने क्या हो रहा। आए दिन दुर्घटना होती है यहाँ पे, जैसे बड़े बड़े वाहन आते, ट्राली वगैरह आती हैं, वो सारी पलट जाती है यहाँ पे। इनका कारण है मेन गड्ढे। लोग गड्ढे के कारण में गाड़ियाँ हैं जो ट्रालियाँ हैं वो ओवरलोड चलती है और पलट जाती है। ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨਾ ਬਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ कैंप हो गया, जम्मू कॉलोनी होगी या होर भी एरिए हो गए, उत्थे BSNL सिम की डाटा की रेंज ना आने का कारण तुहानूं दसांगे कि क्यों डाटा सिम की रेंज नहीं आ रही। इत्थे एक नाले का काम चल रहा जो कि निर्माणाधीन हजे कार्य चल रहा, काम हजे चलता पिया। काम चलन करके इत्थे एक डाटा जिहड़ी BSNL सिम की जिहड़ी तार अंदरों जा रही सी, जिहड़ी नैट प्रोवाइड करती है, ਉਹ ਤਾਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। सर इसका तो जो BTS की तार है ना टावर की, वो कटी है। और हमारे को पता लगा था 1-1:30 बजे के करीब। 1-1:30 बजे के बाद हम तब से यहाँ पे पहुँचे और जितनी जल्दी हो सका कोशिश कर रहे हैं इसको चलवाने के लिए। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ JCB ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੋਣੀ ਨੈਟ ਦੀ, ਡਾਟਾ ਦੀ, PTC ਜਿਹੜੀ PTI ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਜੇ ਨਿਰਮਾਣਾਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਦੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਮੈਕ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੁਵਾ ਜੋ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਮੈਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੁੱਤ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। मेरा बेटा स्मैक के नशे की लत में ग्रस्त हो गया था जी, बहुत ज़्यादा पीने लग गया था थोड़ा। तो इसके बाद अभी मैंने उसको समझाया, कई बार समझाया वैसे तो। एक पहले भी वो छोड़ देता 2 महीने, कभी 3 महीने, फिर शुरू कर देता था दोबारा। अब मैंने उसको समझाया तो वो मेरी बात मान के बोल रहा मैं अभी स्मैक छोड़ दूँगा। मैंने उसको सिविल अस्पताल से दवाई दिलाई,
ये स्मैक फंसा कदों ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ये बाहर था पहले, बाहर शादी के बाद आके यहाँ संगति में ऐसे फंस गया कि उनके साथ स्मैक पीना शुरू कर दिया। ਅੱਛਾ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ हाँ, स्मैक के नशे में फंस गया। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਮੈਕ ਚ ਰਿਹਾ? स्मैक के नशे में कम से कम 2 साल रहा होगा। 2 ਸਾਲ। हाँ जी, 2 साल। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਚਾव ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? बचाव अभी जब ज़्यादा ही हो गया, घर आके भी लड़ाइयाँ करने लग गया। ਅੱਛਾ तो पैसे भी करे मैं सारे बर्बाद कर दूंगा, कुछ खाते हैं पैसे हैं अभी भी बच रहे हैं, कोई ये सारे ख़राब नहीं करे उसने। तो मैं एक दिन इसको समझाया बैठा के, बेटे देख ले अपनी ज़िंदगी बचा, तो कैसे बचानी है, बच्चे एक लड़की भी है इसके पास। ये बोला मैं तो छोड़ना चाहता हूँ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਗਿਆ। हाँ, बोला मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको। मैं कहा चलो छोड़ दो, तेरा साथ हम खड़े हैं, जो तेरे को ज़रूरत पड़ेगी, दिक्कत आएगी, तेरे को दिक्कत नहीं होने देंगे, मेडिकल साइड से या किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर पारस जी के पास लेके गया। उन्होंने इसको दवाई दी, दवाई बहुत अच्छी दवाई दी उन्होंने। ये कहा मेरे मतलब इसने 3-4 दिन तो पी नहीं, फिर भी मेरे को लगता है बीच में कभी इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, 1-2 बार पिया। ਅੱਛਾ ਜੀ। तो उसके बाद फिर दवाई भी खाता रहा ये। अब फिर एक दिन इसको दिल में आया, बोला ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ एक 2 बार किया। ਹੈ। इसके बाद फिर ये मैं कहा भाई ऐसे तो ठीक नहीं है, हम तेरा पहरा तो दे नहीं सकते, मतलब तेरे साथ साथ कहाँ तक घूमेंगे। मैंने बहुत इसका मतलब साथ भी दिया, अपने नज़रों से ओले होने नहीं दिया। अब ये कम से कम इसको 22 दिन हो गए, दवाई भी नहीं खाई वो डॉक्टर साहब की, ਅੱਛਾ और नशा भी नहीं करा। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? हाँ, और अब तो मैंने इसका ऑपरेशन करा रखा, पैर का घर से बाहर ही नहीं निकला, 5 दिन हो गए, ਅੱਛਾ और कोई फ़र्क नहीं है उसको। वो कह रहा मैंने अपना निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं स्मैक नहीं पीऊँगा। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ कुछ अभी समझेगा, मतलब आज फिर बाहर घूमेगा, अपने साथियों में बैठेगा तब तो मानेगा ना बात। अभी यहाँ ये हमारी कॉलोनी में स्मैक इतनी बिक रही है भाई, हर तीसरे घर में स्मैक बेच रहे थे। अब भी है कुछ थोड़ा बहुत, और ये जो देते हैं ना ये स्मैक, ये उसी बंदे को देते हैं जो सड़ा गला सा रहता है, आम दो अच्छे बंदे को नहीं देते, क्योंकि वो पकड़वा देगा खतरा है। अगर प्रशासन इसके लिए सख्त हो थोड़ा सा, हमारे जैसे साथ आएंगे, हम साथ आएंगे उनको पकड़वाने के लिए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਕ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੈਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਸਮੈਕ 1% ਵੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕੀ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇसी बात इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 21 में। बात की जाए यमुनानगर के अंदर जगदीश बाबर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेंबर लोक संपर्क एवं कष्ट निवारक समिति जिला यमुनानगर हरियाणा सरकार का आप बोर्ड देख सकते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। जहां हरियाणा सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, आखिरकार यमुनानगर के अंदर की बात की जाए या वार्ड नंबर 21 में स्पेशल बात की जाए तो कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। मैं संजीव कुमार गोयल, हमारे साथ कुछ ही देर में जगदीश बाबर जुड़ने वाले हैं। जगदीश बाबर जी क्या कहना चाहेंगे? सर आपका कीर्ति भूमि न्यूज में स्वागत है, देखने वाले दर्शकों को। मैं जगदीश बाबर जी, भारतीय जनता पार्टी से जिला सचिव हूँ जी। और सर मेरा निवास तो वार्ड नंबर 21 में ही है। वार्ड नंबर 21 की स्थिति ये है कि ये पूरा अनप्रूव था पहले, जिसकी लगभग ज्यादातर गलियां जो अनप्रूव में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब ये जो अप्रूव्ड हुआ उसमें कार्य चल रहे हैं, पर धीमी गति से चल रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक्चुअली काम बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पार्षद भी लगे हुए हैं। बाकी ये थोड़ा टाइम वो गलियों में कॉलोनियों में अगर ज्यादा दे तो ज्यादा अच्छी बात। बिल्कुल ऐसा है, जब से सीवरेज चालू हो गया पानी की निकासी की 70% तो समस्या हल हो चुकी है जी। जहाँ कहीं सीवरेज नहीं है उसका बिल्कुल जल्दी से जल्दी ही उसका निवारण, नाले बनाने जा रहे हैं, नाले जो मेन गलियों के नाला बनाया जा रहा है उसमें नाले के। मैं मंडल का पदाधिकारी रहा हूँ, जिले में 2-3 प्रधान हो चुके मेरे जी। आपने अपने लेवल पर क्या क्या विकास कार्यों की समीक्षा की, क्या क्या विकास कार्य देखे? मैंने एक्चुअली ये जो एमसी का चुनाव हुआ, पार्षद बनने से पहले हमारा विपक्ष का एमसी था जहाँ, जो मेयर साहब थे, उस टाइम पे जो यहाँ ट्यूबवेल वाटर सप्लाई की बहुत परेशानी थी, मैंने ट्यूबवेल लगवाए, 3 ट्यूबवेल यहाँ लगवाए और लगभग 18 से 20 बिजली ट्रांसफार्मर लगवाए। ये जो गलियां बन गई ये उसी प्रयास से। सर आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा, सरकार अगर इतना प्रयास कर रही है तो सरकार का साथ देना चाहिए हमें,
अगर सफाई व्यवस्था को भी हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम अगर स्वच्छ भारत का अगर नारा आया तो हम अगर कूड़ा रहता है तो हम उठा के गली में गिर देते हैं। हमें भी ये देखना चाहिए हम उसको डस्टबिन में गिरे। और सफाई कर्मचारी अगर कोई नहीं आता तो उसके बारे में हमें बताएं, पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को बताएं और उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। सफाई कर्मचारी बिल्कुल साथ के साथ पहुंचे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारा गांव स्वच्छ हो, हमारा शहर स्वच्छ हो, खासकर वार्ड नंबर 21 स्वच्छ हो, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है हम आपको दे दें, उत्तर प्रदेश से आ रही है। अगर यूपी की बात की जाए, हमारे रिपोर्टर खबर देते हुए नजर आ रहे हैं। नागल क्षेत्र में महिला की गला रेत कर निर्मल हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर हमारे रिपोर्टर द्वारा एक वीडियो शूट किया गया है। हम जल्द आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एचडी गोडम रिपोर्ट अनुसार जो हमारे वहां के पत्रकार हैं, नागल थाना क्षेत्र गांव रसूलपुर खेड़ी में एक महिला की गला रेत कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, मिश्रपाल की पत्नी बीते हफ्ते में अपने मायके भट्टीपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार में गई हुई थी, जहां वहां कल ही लौटी थी। लेकिन अपनी पत्नी को बस स्टैंड से लेने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा। और हम आपको बता दें, लेकिन उसकी पत्नी बस स्टैंड पे नईम उर्फ चुन्नू पुत्र नाजिर निवासी पंडोली अपनी बाइक पर बैठा कर लाया। जब उसने अपनी पत्नी के बाबत पूछा तो उसने साथी के साथ गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहे। हम आपको बता दें, अपमानित किया गया। फिर रात्रि करीब 10 बजे के लगभग उसकी पत्नी पर किसी का फोन आया, जिस पर वह बाहर गई और मिश्रपाल अपने भाई रामपाल को लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने गया और चुन्नू उसकी पत्नी के साथ खींचातानी करता रहा। जब उन्होंने चुन्नू को ऐसा करने के लिए रोका तो उसकी पत्नी को लेकर एक खेत में भाग गया, जिसका भोर तक की कुछ पता नहीं चला। सुबह शौच के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने सूचना दी कि उसकी पत्नी पंडोली रोड और रतिराम के पास गर्दन कटी हालत में पड़ी हुई है। हत्या की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जहां ग्रामीण भारी भीड़ जमा हो गई। हम आपको बता दें, जिस समय यह हत्या हुई और जब सुबह वह शव मिला तो पूरे गांव के अंदर सनसनी फैल गई। यह अपने आप में एक बड़ा संगीन मामला है। आखिरकार हत्या क्या हुई, क्यों हुई, वह किसका रात को फोन आता है और किसके साथ जाती है, अहम पहलू यह जांच के विषय है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही आखिरकार पता चल पाएगा कि उसकी पत्नी के उस व्यक्ति के साथ आखिरकार संबंध क्या थे। जब यह हत्या होती है, अपने आप में सनसनी फैल जाती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि भविष्य के अंदर महिलाएं हों, बेटी हों, जागरूक जरूर रहे और अपने घर तक सीमित रहे। संदीप कुमार गोयल, यमुनानगर।